Yesterday we started the array for simple. If I want to store one option with, as you know, variable, what variable concept is, it is a simple the name given to a memory, a name given to a memory location. Can store the values. So we can store multiple values. We can store multiple values. So to store multiple values, what we have to do, we have to create that many numbers. अगर मुझे 5 वैल्यू स्टोर करने उतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट. So how do we create the variable? How do we create a variable? Variable int a equal to 100. So a is a variable. Right? Now, problem with the array, problem with the variable is that if you want to store multiple values, we have to create that many number of variables. इसलिए हमने देखा था कि array, what is an array? So it is a linear data structure. Okay? Linear data structure, right? Using which can store multiple values. Store multiple. Okay? It is a linear data structure using in the sequential can store multiple values that are of same type. It is a linear data structure using multiple values that are of same type in the same reload. अभी data structure we talked about. What is data structure? That also we talked about little bit. What is data structure? Data structure क्या होता है? Is a structure, a container to the examples of data have array, linked list, graph. What is algorithm? Also we talked about. What is algorithm? Is an of instructions complete a is a set of instructions. तो वैसे ही array क्या है आपका एक data structure जिसका यूज values to. Now what actually it is, why do we use, what is this? So array is an linear data. That is a why question. So what are the advantages? What are the advantages? So we can easily store multiple, बहुत easily हम multiple values. Now if I want to, how do I use this? How do I store the data? How to store data? think ये क्वेश्चन हमने देखा था. तो वहां पर भी दो सिचुएशंस है. इफ वी नो if values to be stored are known
एडवांस, अगर एडवांस आपको पता है कि क्या क्या वैल्यू स्टोर करना है, देयर इज वन वे, एंड द वैल्यूज टू बी स्टोर्ड आर नॉट, यहाँ पर इस केस में क्या करते हो, व्हाट इज द सिंटैक्स, टैक्स इन दिस केस, वो आपको वैल्यूज पता है कौन सी क्या स्टोर, आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप नेम, नहीं लिखनी है, आप क्या लिखते हो डायरेक्टली, कॉमा सेपरेटेड, एग्जाम्पल राइट int, अगर आपको वैल्यूज पता ही, क्या करते हो आप, अगर वैल्यूज इसमें वो डेटा टाइप एरे नेम, यहाँ पर आपको लिखना, यहाँ पर लिखना इस ऑफ इलेवन, सारी वैल्यूज आपको, ये सेम एग्जांपल अभी लेट से मुझे यहाँ पर 5 वैल्यूज पर लिखना, पहले वाला कैसे वैल्यू स्टोर करना है, एक्चुअली हाउ एरे वर्क्स, हाउ एरे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एरे क्रिएशन, अगर आप एरे क्रिएट कर रहे हो तो एरे क्रिएशन इज बट, एरे क्रिएशन बट ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्या होता है कि आप यहाँ पर देखो न्यू कर रहे हो, आप न्यू का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हो तो क्या होगा, आपका एक एरे, देयर विल बी एन एरे, व्हेन यू क्रिएट एन एरे देयर विल बी एन ऑब्जेक्ट, देन as part of the object values will be, part of the object values will be, तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू, एग्जाम्पल अभी लेट से कोई मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, एरे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे, यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने, तो इंटरनली क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के वैल्यूज, and as we know the array elements are in elements are here now, हाउ टू एक्सेस, अभी आपको पता चला कि एरे क्रिएशन इज बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद अभी आपको एरे एलिमेंट्स आपको एक्सेस, वांट टू एक्सेस द एरे एलिमेंट, तो हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट, हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट, कैसे एक्सेस करो,
So array elements are accessed using index concept. This concept index concept or array index range is 0 to array length the maximum. What is the array index range? 0 to array length की नंबर लेट से 5 है, यहाँ पर 4 एलिमेंट, यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स हो गया, यहाँ पर तो 1 और आपको पता होगा कि ये इंडेक्स क्या कॉन्सेप्ट, इंडेक्स इज जस्ट अ इंडेक्स इज एन मेजर ऑफ हाउ फार द एलिमेंट इज द गिवन, इंडेक्स इज एन मेजर ऑफ हाउ फार द एलिमेंट गिवन थ्री सेटर्स। अभी फर्स्ट 10 से 20 कितना दूर है, एक 10 से 11 कितना दूर है, 10 से 45 कितना दूर है, दैट इज जस्ट अ मेजर। नाउ can you tell me what is this 10th value? What is the address of this? What is the memory address, base address? So value is 0. यहाँ तक क्लियर है ये वाला चीज? How, what is an array? Why do we use an array? How to store values using the array? Either you know the values or you do not. How actually works और उसके elements कैसे? Now there are a couple of questions on this. So what is length? Length. Length होता क्या है? अभी आप मुझे बताओ इसके अंदर, अभी ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल बोला जाता है? वेरिएबल विच इज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज परफेक्ट, दैट इज और एक हर एक एरे का जो ऑब्जेक्ट, तब उसके अंदर ठीक है चलो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, इज द लेंथ ऑफ, कैसे फाइंड करोगे आप? लेंथ एक्चुअली होता क्या है? तो टेक्निकली लेंथ आपको, व्हाट इज द साइज ऑफ, अभी इसको थोड़ा समझो, बहुत सारा क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज द इंस्टेंस वेरिएबल अवेलेबल एवरी, और हाउ डू वी एक्सेस इट? हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, आपका रेफरेंस यूज करके आप एक्सेस, आप मुझे बताओ, लेट्स से ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है,
देन रेफरेंस, दो चीज, द थिंग, यहाँ पर एक वेरिएबल है जिस अब मुझे बताओ इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कैसे एक्सेस, कॉपी ऑफ डॉट क्या रिटर्न करेगा वैल्यू 5, perfect. Now see here, what is an array length? If someone is asking, it is an variable. First of all, it is an variable associated with every array. It is an variable associated with every array which returns length or size of an array. Example, let's say मेरा कोई array है, इस array यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, कुछ सम वाली. So if I print this SOP of array dot length, array dot length of array dot length, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट आएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द गिवन array, so output will be here. Example I am taking here. If I print the length of this particular array dot, the output in this top class, the top class, super class, all of the class. Which class is super class? All of the class. तो ऑब्जेक्ट क्लास की मैं सारे क्लासेस को अवेलेबल होगी, ये क्लासेस की सारे क्लासेस को अवेलेबल होगी. array dot तो array is a रेफरेंस, और कोई भी रेफरेंस को कौन सी मेथड, क्लास की सारी मेथड्स अवेलेबल होगी. अभी आप मुझे बताओ, एरे प्रिंट कर रहा हूँ, व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस? क्या एड्रेस कन्वर्टेड डेसिमल डॉट रेफरेंस प्रिंट, कंटेंट प्रिंट, प्रिंट नहीं, क्या प्रिंट होगा? क्या एड्रेस रेफरेंस एरे प्रिंट पर रेफरेंस, रेफरेंस हम और डिटेल इन वी विल. इंटरनली क्या हो रहा है इस, लेट मी कॉल यू दैट, बट इट प्रिंट्स सेम आउटपुट आएगा यहाँ पर. here also you are getting the same. टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होती है इंटरनली,
बहुत सिंपल। हेक्साडेसिमल कंप्लीट क्लास का नाम हेक्साडेसिमल। तो अभी के लिए समझो वी आर गोइंग टू लर्न प्रिंट क्या हो रहा है, रेफरेंस क्या प्रिंट हो रहा है, रेफरेंस प्रिंट। फॉर नॉट जस्ट अंडरस्टैंड इट इज द रेफरेंस। Can I create array with a negative size or zero size? So can you tell me what is the size of this particular array? What is the size of this? है इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा? Object is created. Object is created, but in that object we don't have any values. के अंदर पर लेंथ वेरिएबल होगा क्या? नहीं, लेंथ वेरिएबल होगा ना उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं एरे, अभी लेट से आपने एरे, कौन सा एरे क्रिएट किया आपने, ऐसे वाला एम्प्टी, तो लिखा आपने इंट एरे इक्वल टू लाइक दिस, एरे विल पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन लेंथ तो होगा, वैल्यू कितना, ऑब्जेक्ट इज क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट यू विल नॉट फाइंड द वैल्यूज, है नहीं उधर, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक लेंथ नाम का वेरिएबल, वैल्यू क्या है, भी देखो एरे साइज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एरे साइज क्वेश्चन, एरे साइज क्वेश्चन। So there is first question I'm writing. Can we create an array with zero size? Can create the array. Can create an array with size. Can we create an array size? We can create an array with negative size. Can we create? We cannot create array with yes negative, आप में नहीं कर नेगेटिव साइज, कैनॉट क्रिएट एन array with the size नेगेटिव भी, या फ्लोट में भी नहीं कर सकते, फ्लोट में भी, या आप वहाँ पर बूलियन नहीं दे, अगर आप ट्री, और यहाँ पर देखो एरे साइज स्पेसिफाई करना कंपलसरी, एरे साइज मोस्ट भी स्पेसिफाइड करना ही, अगर नहीं करते हो तो आपको कंपाइल टाइम है। अभी ये जीरो साइज है, आप कर सकते हो, तो आप एरे 3 बट लेंथ करोगे, फाइंड दैट एज एरे साइज। ऐसा नहीं कि आप नहीं, now if I this size is made as 50, is 50 happen, get a रन टाइम, कंपाइल टाइम कुछ, रन टाइम आपको नेगेटिव एरे साइज, क्या एक्सेप्शन आएगा,
अगर आप बोल रहे हो किसी को जाके बोल रहे कि मुझे हॉल बुक करना है, नेगेटिव 500 लोग, ठीक है। तो आप अगर कोई एरे क्रिएट करने का ट्राई करते हो, नेगेटिव साइड विल हैपन। We get negative size exception, negative, we get negative array size exception if we create an array, create an array with negative size. Get negative array size exception, get an array with ये वाला। Then there is another question, what is uh, array index out of bound section? क्या होता है ये? Index out of bound. Now how many let me, how many values are there? How do I access the value of an array? To access the value of an array, use यहाँ पर आप लिखोगे 0 1, यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर। नाउ दिस इंडेक्स इज, ये वैल्यू वहाँ पर इंडेक्स है क्या, वहाँ पर इंडेक्स का रेंज क्या है, टू, मिनिमम इज 0 और मैक्सिमम इज लेंथ माइनस, एरे का लेंथ कितना है 3 माइनस 1, दैट इज मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है यहाँ पर आपको आएगा। व्हेन डू यू गेट द एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 6 बोलोगे? So if you try to access an index not there, get this minimum index is 0, maximum index is array length, array की लेंथ होगी फिर ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। नाउ देयर इज नथिंग पेंडिंग फॉर थियोरेटिकल, सारा आपका थ्योरी क्लियर है। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आई विल जस्ट राइट इट दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ array? Elements are stored in sequential location, relocation। इससे फायदा क्या होगा? तो retrieval varies best for for faster, it is faster। और एग्जाम्पल कौन सा डेटा आपने स्टोर करना चाहिए? स्टोर डेटा एज लिस्ट पिन कोड्स, ऐसा कुछ आप यहाँ पर
डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स बोल सकते हो? कैन यू टेल मी द ड्रॉबैक्स? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एन परफेक्ट एरेज इन नेचर? मतलब once array is created, once array is created, cannot be array is created, it cannot be, there will be hash or शॉर्टेज होगा या और क्या है? स्टार्ट विद दैट। कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं हम। व्हाट द पहले तो हम बेसिक्स देख। अब मेरे पास कोई एरे है, उसे मुझे एक्सेस करना है, मतलब उसका कंटेंट मुझे प्रिंट करना है। क्या ऑप्शन आपके पास? पहला ऑप्शन क्या करें हम? रीड। रिट्राइव करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आपके पास? इतने सारे आप प्रिंट सेट करें, आप जीरो जो भी है आप फर्स्ट थिंग। अगर मेरे पास 10,000 वैल्यू, आई कैन नॉट राइट दिस। आप क्या लिख सकते? फॉर लूप लिख सकते। फॉर लूप कैसे लिख सकते? वेरी सिंपल। योर इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंडेक्स विल रन टिल array डॉट लेस देन है, करो इसे ऑफ। सबको समझ में आता है राइट? फॉर लूप टाइम चलेगा ये लूप? कितने एलिमेंट्स है? चार, तो चार बार चार बार जीरो लुक। क्लियर? नाउ आई वांट सम सम ऑफ एरे एलिमेंट। जो भी सारे एरे एलिमेंट्स है उनका सम चाहिए, सबका सम। कैसे फाइंड करोगे? ये एरे है मेरा, एरे में से सारे एलिमेंट्स है उसका सम। पहले तो आपको सम स्टोर करने एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। सम इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट आपको एक फॉर लूप लेना पड़ेगा। आई स्टैंड्स सिक्स जीरो, और ये कब तक चलेगा? एरे डॉट। और जब भी कोई आ रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस ऑफ सारे एलिमेंट सम एलिमेंट। कितना ही आएगा? 450, 500। तो पाओगे आप लोग? ये बढ़ते हैं।
अब मुझे क्या करना है, जो इवन नंबर्स है इस पर्टिकुलर एरे में, सम ऑफ वन, जो इवन नंबर्स है जो उनका सम चाहिए, क्या करोगे? टेल मी, इस पर्टिकुलर एरे में जो भी इवन नंबर्स है, बिल्कुल इस पर्टिकुलर एरे में जो भी इवन नंबर्स है ये सम चाहिए। लेट से आपका सब सारे लोग का परसेंट, मैं चाहता हूँ कि जिनका भी इवन नंबर में परसेंट है सबका मुझे क्या करना है, जिनका भी इवन परसेंट एडिशन। चलो एक, फिर से सारे लोग आप काम सैलरी मिल, पहले मुझे क्या करना है, सब सारे लोग का सैलरी का क्या करोगे आप? एडिशन होगी, कैसे करोगे एडिशन? आप खुद का प्रकाश का शख्स, आप कंटिन्यू, अब मुझे सबका सैलरी नहीं, कभी सैलरी इवन डिजिट में है, इवन है, उनका ही सैलरी का सम कैसे करोगे? अभी इसमें सबकी सम हो रही है, इसमें क्या हो रही है, सबकी सम हो रही है, बट मुझे क्या चाहिए, जो भी एरे एलिमेंट है, जो भी एरे एलिमेंट है दैट शुड बी इक्वल इक्वल मॉड, तब वो इवन नंबर होना चाहिए, तभी उसके एरे वन एलिमेंट सम। अब यहाँ पर कितने सारे इवन नंबर है, 10 एंड 12 कितना होगा, 22। इवन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, अगर उनका जो नंबर है इस एलिमेंट का वो इवन है तभी उसको सब में ऐड। स्वप्निल आप में से किसको 87% है? कैसे सच, दिस इज द डेटा है। अब मुझे सर्च करना है कि एलिमेंट एक्स 87 इस पर्टिकुलर लिस्ट में अवेलेबल है, क्या करोगे आप? कॉलेज का लिस्ट लगे, आपका नंबर है ही नहीं, कैसे सर्च करोगे आप? क्वेश्चन नहीं समझा? लेट से आपका, लेट से आप क्या जॉब लिस्ट, अभी लेट से आपका ही, और कंपनी ने क्या किया, जिनका भी सिलेक्शन का लिस्ट बाहर ऐसे लगा दिया कि आपको चेक करने कि आपका उधर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कैसे करोगे आप, क्या करोगे? रेफरेंस नहीं, आपका उधर नाम लिखा है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका नाम उधर लिखा है ऐसे, क्या करोगे आप? देखिए लास्ट तक चेक करोगे, वही करना है इधर। एग्जाम्पल चलो, और एक और आपको सिंपल, अभी मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग एरे है और उसमें है सेलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट, यहाँ पर मेरे
मेरे नाम से, और मुझे पता करना है लेट्स से किसका सर्च कर, मुझे पता करने के, लेट्स से यहाँ पर रोहित गया और रोहित को पता करने लिस्ट रहेगा आपके पास। रोहित इक्वल टू फर्स्ट नेम, रोहित इक्वल टू सेकेंड नेम, रोहित इक्वल टू थर्ड नेम, रोहित इक्वल टू फोर्थ। जहाँ पर भी मिलता है आप वहीं पर रुक जाओगे। अभी इस केस में प्रेजेंट है ही क्या, कैसे सर्च करोगे? आप सिंपल सा एक फॉर लूप लिखोगे, इंडेक्स और इंडेक्स का सेलेक्टेड। अब मुझे क्या करना है, इफ जो सर्च, जो एलिमेंट सर्च डॉट इक्वल्स यूज कर, और आप यूज करके अगर प्रेजेंट है आप बोलोगे सेलेक्टेड, और आप वही, बाकी कुछ सर्च करने की जरूरत है अभी? अभी आपका लिस्ट में नंबर आ गया, आपको बाद में कुछ देखने की जरूरत है क्या? यहीं पे रुक जाओ। बाकी 10,000 लोगों का लिस्ट है, वो देखने की जरूरत है क्या? आपका नंबर आ गया, दैट्स अगर नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अभी तो आपने बोल दिया कि आपका नंबर आ गया, अभी रोहित का नंबर ही नहीं है उसमें, रोहित का नंबर ही कुछ प्रिंट ही नहीं किया फिर, तो एटलीस्ट बताना तो पड़ेगा ना कि भाई आपका हुआ नहीं हुआ, कैसे बताओ? हाँ, एल्स किधर लिखोगे? इधर, इमीडिएटली इधर लिखोगे तो क्या होगा? नॉट सेलेक्टेड, ऐसे लिखोगे आप, से क्या होगा? अभी लेट से मेरे 10,000 स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम ही मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बार 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 प्रिंट। देखो कितने बार नॉट सेलेक्टेड। अभी लेट से कोई नाम प्रेजेंट भी हो, और मैं कोई नाम लिख रहा हूँ राहुल का, सब कुछ प्रिंट करेगा, एक बार बोलेगा सिलेक्टेड, 3 बार बोलेगा नॉट, या 3 बार बोलेगा नॉट सेलेक्टेड, चौथी बार बोलेगा नॉट अ गुड थिंग। क्या करना पड़ेगा? आप एक सिंपल मतलब फ्लैग यूज कर, फ्लैग, फ्लैग मतलब सेलेक्टेड, पहले बोलो कि नॉट सेलेक्ट, पहले आप एज्यूम करते हो मेरा, अगर होता है तो आप बोलोगे बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट सेलेक्ट, बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट सेलेक्ट। अगर यहाँ पर सेलेक्टेड होता है तो आप बोलोगे इज सेलेक्टेड इक्वल टू, अगर बाय डिफॉल्ट आपने क्या मान लिया, मेरा नहीं है, जब होता है तो आप क्या बोलोगे? और लास्ट में आप बोलोगे, सिंपल सा लॉजिक लिखोगे इज, अगर सेलेक्टेड है तो वो पे क्या आता है वो, ट्राई लेटर, बेटर लक नेक्स्ट तक मदद होगी, बेटर लक। अभी देखो यहाँ पर राहुल का हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा नहीं, अभी इसका नाम है राइट। अगर मैं यहाँ पर रोहित का नाम लिखूँ, रोहित का लिस्ट में नाम है क्या? हमने कैसे पता किया रोहित फर्स्ट सेकंड थर्ड, हर एक को हमने स्टार्ट किया कंपेयर करना, राइट? ये जो किया हमने इसे क्या बोला जाता है, यार सर। अगर दूसरा, अभी दूसरा मैंने कल आपको एक बाइनरी, अगर लेट से 10,000 स्टूडेंट्स का लिस्ट और सारे नेम सॉर्टेड हैं, और लेट से आपका नाम स्टार्ट होता है
आर से। तो आपको A2 वहां तक जाने की जरूरत है क्या? अभी कहाँ देखोगे मिडिल पॉइंट की, अगर आर में जाओ आप ऐसे करोगे तो बाइनरी सर्च लाइक योर डेटा इज, इसमें आप बाइनरी सर्च कर। नेक्स्ट, अब मुझे पता करना है कि आपके क्लास में टॉपर कौन है। आपका टेस्ट हुआ है और सबका मार्क्स आप कैसे पता करोगे? आई हैव दिस एरे विच कंटेन्स योर मार्क। अब ये नंबर्स है। अभी ये डेटा देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें से 9, लेकिन आपके पास लेट से 1 करोड़ डेटा है, तो कैसे देखो? उस डेटा में से आपको पता करना है कि व्हाट इज द टॉपर। अभी बहुत सारी, कौन टॉपर है कैसे पता, कैसे फाइंड करो? हु इज द टॉपर कैसे फाइंड करो? लेट से आप क्लास में आप कैसे फाइंड करोगे आप में से 12th क्लास में सबसे ज्यादा किस, कैसे पता करो? यार क्या करोगे आप? कंपेयर, कंपेयर कैसे करोगे आप बताओ? मार्कशीट देखने की जरूरत नहीं आपके पास है, आपके पास क्या करोगे आप? पहले आप राहुल को पूछोगे कि फिर सबको एक एक बार पूछो, आप पूछोगे या कोई और पूछेगा? अगर लेट से आपका, लेट से लेट स्टार्ट विद अक्षय, स्टार्ट करते लेट से 76 मार्क्स और स्वप्निल का 87, 54, 90। आप में से कौन मैक्सिमम कैसे पता करेगा? अरे देख के नहीं, आपके पास ये डेटा बहुत ज़्यादा है। अभी तो आपको इतना सारा दिख रहा है, लेकिन आपके पास अभी डेटा आप काउंट नहीं कर पाओगे, इतना सारा डेटा है, उससे मैक्सिमम फाइंड करना है। ये वो सॉर्टेड डेटा नहीं है ना, यहाँ पर 1000 भी हो सकता है किसी। 190 है देख के पता चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा डेटा है कि आप उसको देख नहीं सकते। तो क्या क्या लॉजिक लगो? फॉर लूप तो चलो, हाँ फॉर लूप तो लगाना पड़ेगा, वी हैव टू विजिट एवरी अदर एलिमेंट। लेट्स से मैक्सिमम नंबर के लिए मैं अभी ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, एक कंपेयर करोगे आप, क्या करोगे आप? कंपेयर, कंपेयर करोगे, ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है कि आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करोगे आप? लेट्स अज्यूम अभी मैक्सिमम है ये नहीं, कैसे कंपेयर करोगे आप दोनों का कंपेयर करोगे, दोनों में से कौन बड़ा है, दैट विल बी द मैक्स। फिर दोनों के बाद बाजू वाले के साथ कंपेयर करोगे आप दोनों का, राइट? लेट्स से अभी फर्स्ट यू विल ट्राई रोहन, रोहन, दोनों में से किसका मार्क ज्यादा? लेट्स से 190 एंड 76, मैक्सिमम कौन बन गया? 1। फिर जो मैक्सिमम है उसके साथ कंपेयर करोगे और ये दोनों के साथ करोगे जो मैक्सिमम, उसके बाद अभी दोनों में कंपैरिजन हुआ, परफेक्ट, मैं लिख ही लेता हूँ इसको। लॉजिक समझ लेना, बहुत सारे लोगों को पूछा जाएगा। डेटा है। अब इसमें से क्या करूंगा मैं? कंपेयर, किसकी कंपैरिजन की? पहले सबसे पहले इन दोनों की कंपैरिजन, दोनों में कौन मैक्स है? फिर 190 और
87, दोनों में कौन मैक्सिमम है? 190, वही फिर भी रहेगा। फिर 190 और किसके साथ? 54, 190 एंड 98, 190 एंड 99, 190 एंड सबके साथ कंपेयर हो गया, तो मैक्सिमम कौन बन? अभी लेट्स से यहाँ पर एक और मेरा नंबर है 190, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन था? 190 और 36। फिर 190 और 190 कौन होगा? नया मैक्स होगा। ये समझा लॉजिक सब? इनिशियली यू कैन एज्यूम कि फर्स्ट नंबर मैक्सिमम। कहाँ से स्टार्ट करो? कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करो? कोई भी एक नंबर ले सकते हो। मैक्सिमम स्टोर करने, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको। यू विल टेक द इनिशियल वैल्यू इंट मैक्स, कुछ तो वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ। इनिशियली आप मैक्सिमम किसी को भी कंसिडर, जैसे मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, कोई तो 214 वैल्यू मैंने ले ली, ये मिनिमम वैल्यू है, इज मिनिमम वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू। फिर मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करूँ, इफ ये और ये इन दोनों में मैक्सिमम कौन बन गया? फिर नया मैक्सिमम। अब मैं इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, ये कुछ -514 मैक्सिमम वैल्यू। अभी इसे और मैं इसे कंपेयर करूंगा, दोनों में मैक्सिमम कौन है? ये नेगेटिव है। कौन मैक्सिमम दोनों में? 190। अभी नया मैक्सिमम है 190। मैक्स आपका वैल्यू चेंज हो गया, मैक्स कौन है अभी आपका? 190। फिर 190 और किसका कंपैरिजन होगा? सेम ही रहेगा, 119 7 90, 90 एंड 88 सेम सेम। फिर अभी इन दोनों का कंपैरिजन होगा और आपका नया होगा। तो आपने क्या किया? हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया मैक्स वैल्यू को। समझे लॉजिक? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, एक मैक्सिमम वैल्यू, आप नहीं लेते तो भी चल जाएगा एक्चुअली, और इंडेक्स इक्वल टू 0 एंड इंडेक्स लेस देन एरे डॉट मैक्सिमम को 0 वैल्यू दे देगा। वो अभी होगा नहीं, अभी देखो। अभी आपको क्या करना है? मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स, then maximum will be equal to of। अब इसे आप कुछ तो इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, 0 दे सकते हो, लेकिन 0 नहीं दे सकता मैं। व्हाट आई विल डू, इंटीजर डॉट क्या मिनिमम वैल्यू माइनस, बहुत मिनिमम वैल्यू होती है डॉट मिनिमम, क्या वैल्यू है इसकी? बहुत छोटी वैल्यू है सब, मतलब इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी माइनस वाली। अभी इससे सारे नंबर बड़े हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है, यहाँ पर ये डायरेक्टली ऐसे लिख -2147483648। तो इससे सारी वैल्यूज बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू उसको मैक्स अज्यूम किया। पहले मैंने अज्यूम किया कि सबसे कम नंबर वाला मैक्स। अभी क्या किया मैंने? अभी इसको देखो यहाँ पर, जस्ट चेक दिस। इफ मैक्सिमम इज लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स, इफ मैक्सिमम इज लेस देन, इफ मैक्सिमम इनिशियली एक नेगेटिव वैल्यू ले लिया मैंने, इन दोनों को कंपेयर करो। इनिशियली मैक्सिमम कितना आपका? -2 और 190, दोनों में बड़ा कौन सा है? 190। मैक्स कौन सा बनेगा आपका? 190। ये बड़ा, ये 190 कब कैसे बना? इफ -2 इज लेस देन, -2 इज लेस देन, तब आपका मैक्स बना 190। चलो नेक्स्ट इटरेशन, आपका मैक्स कितना बना? 190। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 190 लेस देन 76, लूप के अंदर जाएगा,
लूप के अंदर जाएगा क्या? जाएगा नहीं जाएगा, 190 इज ग्रेटर देन 70 जाएगा इधर। नाउ 87 जाएगा क्या अंदर? 54, 99, 98, 36 और 192। तब आपका मैक्स कितना बनेगा? दैट्स इट, हो गया आपका लॉजिक। array maximum is for your understanding, let me deep this. Here initially maximum की वैल्यू कितनी? maximum is less than array of index, -2 is less than 190, -2 less than 190, true false? true, तो लूप इसके अंदर आएगा, यस। अभी मैक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मैक्स का वैल्यू कितना बना? 190। अभी 190 और 76 कंपेयर होगा, फॉल्स रहेगा। फिर 190 एंड 87 कंपेयर होगा, 190 एंड 54 कंपेयर होगा, 190 एंड 98 कंपेयर होगा, इज नॉट 190 एंड 99, 199, 36। सबसे पहले मेरा ही मैक्सिमम इस, यहाँ पर एक और आप वैल्यू दे सकते हो 190, इज दैट आपका मैक्सिमम कौन सा बनेगा अभी? 190। चलो नेक्स्ट, अब मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए। आप में से सबसे कम मार्क किसको पता करोगे आप? ये मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, ये मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू है, मिनिमम मान है, मिनिमम मान। अभी इससे कम छोटा नंबर मिलता है तो दैट विल बी मिनिमम। अभी इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन, if minimum is greater than array of index, it is same logic है, बस 36 to understand। नेक्स्ट, ये थोड़ा ट्रिकी है। इस सेकेंड मैक्स कैसे करोगे? मेरा एरे है, इसमें से मुझे सेकेंड मैक्स फाइंड करना है। हु इज द सेकेंड मैक्स हियर? मैक्सिमम कैसे निकालोगे आप? मैक्सिमम इज 192, सेकेंड मैक्स क्या करोगे आप? प्रॉब्लम समझा? प्रॉब्लम इज फाइंड द मैक्सिमम, सेकेंड मैक्स। पहले मैक्स निकाल, बाकी होगा डिफरेंस। एक और मतलब कितने लूप लगाओगे? 3 लूप। चलो आप में से चलो मैं आपको नंबर देता हूँ, लोग 6 लोग हैं, परसेंटाइल समझ।
अक्षय 76, रोहन 87, स्वप्निल 54, रोहित 98, राहुल 89। चलो आप में से टॉपर कौन है, कैसे कंपेयर करोगे? कंपेरिजन ही, कंपेरिजन। आप में से सबसे ज्यादा सैलरी किससे यार? तुम क्या पर कैसे फाइंड करोगे? कंपेरिजन ही करो, लॉजिक बताओ कैसे निकाल के दो। बताओ, चॉकलेट है क्या? चॉकलेट दे सकता हूँ। तो कैसे लॉजिक तो बता सकते हो ना। चलो आप दूसरे एक दूसरे को साथ मतलब पूछो कि मतलब कैसे पता होगा, आप दूसरे में से एक दूसरे में कैसे कम क्या करोगे? जैसे प्रोग्रामिंग भूल जाओ, अभी आप लोगों में से मुझे टॉपर कौन है और सेकंड टॉपर निकाल के दो। अरे ये अभी चलो इसे देख के नहीं है, अभी लेट से 10,000 लोगों का डेटा है। कैसे पता किया, मतलब राहुल टॉपर है कैसे पता किया? क्या कंपेयर? हम्म। चलो अभी आप लोग के नंबर्स मुझे पता नहीं। बात 6, यहाँ पर वैल्यूज हो सकती है। अब इसमें से कौन मैक्स है? एक्स वाई जेड एबीसी में, जेड एबीसी। अब बताओ जेड कैसे? इसमें अब किसकी अब क्या अप्रोच, कौन मैक्सिमम क्या पता करोगे? अरे अरे क्या हुए करने का? वैल्यूज लिखी 6, 498, 90। ये वैल्यू चलो मैक्सिमम का बताओ, मैक्सिमम में क्या किया आपने? मैक्सिमम में क्या किया आप? कोई तो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आपने मैक्स। अब क्या करोगे आप, मैक्स और एक्स इन दोनों का कंपैरिजन होगा फर्स्ट टाइम, किसका कंपैरिजन? मैक्स और, तो अगर मैक्स की वैल्यू एक्स से छोटी है, मैक्स का वैल्यू क्या बनेगा? इक्वल टू
समझा? मैक्स, इफ मैक्स इज लेस देन एक्स, मैक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्चुअल वैल्यूज लेके दिखाता हूँ मैं आपको। मैक्स की वैल्यू कितनी है? और 76। मैक्स कितना बनेगा आपका? मैक्स कितना बनेगा अभी? -2 है। -2 इज लेस देन 76। अभी नेक्स्ट, ये मैक्स की वैल्यू क्या बनी आपकी? अभी नेक्स्ट कंपैरिजन क्या होगा? 76 एंड आपका मैक्स कितना? नेक्स्ट, ये आपका मैक्स बन गया 87 और 54। 87 और फिर भी आपका मैक्स चेंज होगा क्या? इधर जाएगा क्या? 87 लेस देन 54 इधर जाएगा नहीं। 87 लेस देन 98, 7 लेस देन 98 होगा। यस, मैक्स का वैल्यू कितना बनेगा? 39 से सेकंड सिंगल मैक्स तो मिल। अब सेकंड मैक्स, सिंगल मैक्स तो समझ में आया सबको? सिंपल है, पहले एज्यूम किया और आपने कम। अब जब भी आपका मैक्स चेंज हो रहा है, कि आपका मैक्स चेंज हो रहा है, तो जो मैक्स था वो सेकंड मैक्स बनेगा, जो पहले मैक्स था वो क्या बनेगा? सेकंड मैक्स। एग्जाम्पल, अभी मैक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? -2। और सेकंड मैक्स, इसका कुछ वैल्यू है से माइनस, दोनों का माइनस ही वैल्यू रखा है मैंने। देखो यहाँ पर 76, मैक्स का वैल्यू कितना है? माइनस वैल्यू, -2 पकड़ो। मैक्स और 72, 76, इफ मैक्स इज लेस देन ऑफ आई, वैल्यू रखो। मैक्स की वैल्यू कितनी है? -2। -2 इज लेस देन 72 है। मैक्स का वैल्यू कितना बना? 36 बन गया। एफ आई मतलब 76। अभी जो पहले मैक्स था, तो अभी सेकेंड मैक्स, जो पहले मैक्स था वो अभी सेकेंड मैक्स बन जाएगा। आप यहाँ पर सेकेंड मैक्स इक्वल टू, तो पहले सेकेंड मैक्स अपडेट करो विद द मैक्स वैल्यू और फिर मैक्स की वैल्यू अपडेट करो। सिंपल। चलो नेक्स्ट, अभी मैक्स और इसकी वैल्यू क्या बनी? सेकेंड मैक्स की, सेकेंड मैक्स कितना है अभी? -2 है। क्या है वो? -2। और मैक्स कितना है अभी? अभी नेक्स्ट आई प्लस प्लस कहाँ पर आया? 87। 87, 87 इज लेस देन, सॉरी मैक्स की वैल्यू कितनी है? 76। 76 लेस देन है, करेक्ट? तो अभी आपका सेकेंड मैक्स कितना बनेगा? 76। और आपका मैक्स कितना बनेगा? नेक्स्ट आई प्लस प्लस 54 करो, इसमें फॉर्मूला लगाओ। मैक्स कितना है आपका? 87। मैक्स कितना है? 87। 87 लेस देन 54 फॉल्स। मैक्स का और सेकंड मैक्स का वैल्यू अपडेट
नेक्स्ट 87 एंड 98, 87 एंड 98 मैक्स चेंज होगा, यस। सेकेंड मैक्स कितना बनेगा? 87 और सेकेंड मैक्स। नेक्स्ट 89, मैक्स का वैल्यू कितना है? 98 लेस देन 89, 98 लेस देन 92, तो सेकेंड मैक्स कितना बनेगा? 88 और मैक्स सेकेंड मैक्सिमम कितना बनेगा? परफेक्ट। नेक्स्ट मैक्स का वैल्यू कितना है? 89, देन फॉल्स हो गया। क्लियर है? यहाँ पर ये समझा आपको? जब भी मैक्स की वैल्यू चेंज होगी आप क्या करोगे? सेकेंड मैक्स को अपडेट करो। सेकेंड मैक्स की पहले अपडेट करो जो पहली मैक्स वाली थी, और फिर मैक्स की नई वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। अभी यहाँ पर एक और ट्रिक, क्या ट्रिक है यहाँ पर सेकेंड मैक्स तो आपका अपडेट हो गया, सेकेंड मैक्स अपडेट हो गया। चलो वो और एग्जांपल, इसमें एक और मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ। मैक्स मैक्स वैल्यू अभी क्या है? यहाँ पर 105 है, कितना है? 105। यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ 105 के बाद। चलो 96 तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? 96 तक। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वैल्यू 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो अभी मैक्स और सेकंड मैक्स यहाँ तक क्लियर है। 99 एंड 105, 99 इज लेस देन 05, ट्रू। तो आपका सेकेंड मैक्स कितना होगा? 99 और मैक्स करेक्ट। आई प्लस प्लस और मैक्स की वैल्यू कितनी है? 105 लेस देन 10, फॉल्स, फॉल्स। मैक्स की वैल्यू अपडेट होगा नहीं, ये आपका सेकेंड मैक्स 101। यहाँ पर एक क्या, अभी इसको हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आप मैक्स का वैल्यू तो कंपेयर कर ही रहे हो, यहाँ पर कौन कौन से वैल्यू कंपेयर किया आपने? 105, 101, 05 एंड 101। तो आपको नीचे एक और कंडीशन क्या? इफ क्या सेकेंड मैक्स इज लेस देन, मैक्स तो होना ही चाहिए परफेक्ट, एंड सेकेंड मैक्स must be if it is less than array of I, then second max equal to से सेकेंड मैक्स का वैल्यू कितना है? 99, 99 इज लेस देन मैक्स, मैक्स का वैल्यू कितना है? 105, परफेक्ट ट्रू। एंड सेकेंड मैक्स का वैल्यू कितना है? 99 इज लेस देन 101, दोनों ट्रू है। तब यहाँ पर आएगा कोड, यस परफेक्ट। तब आपका सेकेंड मैक्स का। आपको एक और चीज यहाँ पर समझे, ये कंडीशन क्यों ऐड करना पड़ा हमें? क्योंकि ऐसा हर बार होगा नहीं कि सेकंड आपका मैक्सिमम अपडेट होगा, मैक्सिमम अपडेट हो सकता है राइट। अभी आपका यहाँ पर देखो 105, 105 से पहले देखो 76 और 87 आपने कंपेयर किया, मैक्सिमम कौन बना? पहले फिर से एक बार देखो 76 और 87, हु इज मैक्स? मैक्स बन गया 87 और सेकंड मैक्स 76। पहले 76 मैक्स था, फर्स्ट टाइम 76 मैक्स था, दोनों का माइनस माइनस वैल्यू था, सबसे पहले मैक्स कौन गया? 70। फिर 76 और 87 कंपेयर हो रहा, मैक्स कौन बना?
87, लेकिन उससे पहले आपको सेकंड मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी? तो इसे सबसे पहले मैक्स कौन था? 76, सेकंड मैक्स क्या था? -2। अभी 76 एंड 87 कौन बनेगा मैक्स? यहाँ पर मैक्स कौन सा होगा? 87, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो मैक्सिमम की वैल्यू थी वो सेकंड मैक्स को असाइन करनी पड़ेगी। ये बन गया 87। नेक्स्ट 87 और 54 चेंज नहीं होगा। 87 एंड 98 चेंज हो गया। यस, सेकंड मैक्स बन गया 87 और मैक्स बन गया 98 एंड 99 क्या हुआ? 98 एंड 99 कंपेयर हो गया, आपका सेकंड मैक्स बना 98 और मैक्स बना 99। फिर 99 के बाद 96, 99 96 चेंज होगा नहीं। 99 एंड 105 चेंज बना, सेकंड मैक्स बन गया 99 और मैक्स बना 10। अब लास्ट वाली केस 101, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। 101 इसमें क्या हो रहा है? मैक्स चेंज होगा अभी। 105 एंड 101 कंपेयर हुआ, लेस है क्या? नहीं है। तो आपका मैक्स अपडेट होगा क्या? नहीं, लेकिन आपकी एक चीज अपडेट होनी चाहिए, क्या? सेकेंड मैक्स। तो सेकेंड मैक्स विल बी ऑलवेज बी लेस देन मैक्स। सेकेंड मैक्स विल ऑलवेज बी लेस देन मैक्स, यस। अगर वो सेकेंड मैक्स इज लेस देन मैक्स एंड सेकेंड मैक्स इज आल्सो लेस देन 101, 99 एंड 101 कंपेयर करो। 101 कंपेयर करो, 101 को दोनों के साथ कंपेयर करना, किसके साथ? मैक्स और सेकंड मैक्स के साथ। मैक्स के साथ तो वो कुछ नहीं होगा उसका, लेकिन सेकंड मैक्स के साथ का चेंज होगा। तो मैक्सिमम इज 105, करंट वैल्यू इज 101 एंड सेकंड मैक्स इज 99। मैक्सिमम तो अपडेट होगा नहीं, सेकंड मैक्स अपडेट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज सेकंड मैक्स का वैल्यू उस करंट वैल्यू से कम है, इसलिए 99 और 101 दोनों में से वैल्यू ये बड़ी, इसलिए आपका सेकंड मैक्स चेंज होगा। ये वाला तो थोड़ा टाइम देना, घर जाके आराम से सोचो। ठीक है, ये वाला सेकंड देखो। दोनों एक साथ ही लिखेंगे। इंट मैक्स इक्वल टू वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास सेकंड मैक्स दोनों हो गए। क्या करना है अभी? सिंपल सा फॉर लूप लेना है। इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल कंटिन्यू टिल array dot length, that's it. Now if max का value is less than array of index, then simply पहले आपका max अपडेट होगा, second max will be equal to max and max will be equal to array of, समझे? पहले मैक्स, अब मैक्स, अब अभी मैक्स का वैल्यू, मैक्स का वैल्यू कितना है? नेगेटिव। -2 और -76 कौन सा बड़ा है? मैक्स का वैल्यू -2 इज लेस देन 76, ट्रू। तो आपका सेकंड मैक्स बन जाएगा मैक्स का जो पहले वैल्यू था, और मैक्स बन जाएगा लेटेस्ट वैल्यू। दूसरा, इफ सेकंड मैक्स इज, सेकंड मैक्स इज, यहाँ पर एक और वैल्यू लेके देता हूँ मैं, 105 एंड 101। ये कंडीशन नहीं लिखते, देखो आपको आउटपुट में थोड़ा गड़बड़ आएगा, दैट्स फाइन। मैक्स एंड मैक्स, देखते इधर। ओके, लेट्स डिबग दिस। एक और कंडीशन मैंने ऐड नहीं किया जानबूझ के, क्या आपको क्या प्रॉब्लम? क्लियर, एरे क्रिएट किया, मैक्स सेकंड मैक्स आपने इनिशियलाइज कर दिया। नाउ यहाँ पर इंडेक्स स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ 0 मतलब 76, कंट्रोल कहाँ पर है अभी? 76। मैक्स का वैल्यू कितना है? नेगेटिव। नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, ट्रू।
कंट्रोल आएगा अंदर, सेकेंड मैक्स का वैल्यू अपडेट होगा, मैक्स के पहली जो वैल्यू थी और मैक्स का वैल्यू बन गया इंडेक्स प्लस प्लस, कंट्रोल आएगा 87 पर। मैक्स का वैल्यू पहले कितना था 76, 76 लेस देन 87, ट्रू। सेकेंड मैक्स बन गया 76 और मैक्स बन गया 87। तो यहाँ पर मैक्स बन गया 87 और सेकेंड मैक्स है 76। इंडेक्स प्लस प्लस 54 बना, तो आपका मैक्स चेंज होगा नहीं। 98, 87 और 98 कंपेयर होगा, सेकेंड मैक्स बनेगा 87 और मैक्स बनेगा 98। सिमिलरली 98, 99, आपका सेकेंड मैक्स बनेगा 98 और 99 बनेगा मैक्स। उसके बाद 96, 96 कुछ होगा नहीं, उसके बाद 105 मैक्स बना आपका 105 और सेकेंड मैक्स बना 99। और ऑन लास्ट इक्वेशन आपका अभी एरे ऑफ इंडेक्स कितना है 105, कितना है 105। उसके बाद आपका एरे ऑफ इंडेक्स बना 101, 101 एंड मैक्स, मैक्स चेंज होगा क्या अभी, मैक्स कितना है आपका 105 और आपका करंट वैल्यू कितना है 101, 105 लेस देन 101, 105 लेस देन 101, फॉल्स। आपका मैक्स अपडेट होगा नहीं और उसी के चलते आपका सेकेंड मैक्स भी अपडेट होगा नहीं। और इस आपको मैक्स तो सही मिला लेकिन सेकेंड मैक्स कितना मिला 99, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। अगर 101 चाहते हो तो उसके लिए आपको एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, क्या, सेकेंड मैक्स मस्ट बी लेस देन मैक्स, सेकेंड मैक्स बी लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स, देन सेकेंड मैक्स विल बी टू ऑफ। ये समझा राइट, ये क्यों किया मैंने, आई हैव डन दिस, मुझे सेकेंड मैक्स से ज्यादा बड़ी वाली और मैक्स से छोटी वाली वैल्यू मिली। एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर 98, 9 चार वैल्यू ले रहा हूँ अभी, 98, 105। तो हमने क्या किया था पहले, अगर मैक्स बड़ा आता है तो अभी पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, अभी मैक्स की वैल्यू सर ये दोनों की भी क्या है मैक्स और मैक्सिमम सेकेंड मैक्स, इन दोनों में कंपेयर होगा, मैक्स कितना बनेगा 99, सेकेंड मैक्स फिर 99 एंड 105, 99, 105, मैक्स कितना बना 105 और सेकेंड मैक्स बना करेक्ट। भी कंट्रोल आया यहाँ, कंपेयर करो, तीन चीजें आपको कंपेयर करना है, मैक्स, सेकेंड मैक्स और करंट वैल्यू। क्या क्या, मैक्स, सेकेंड मैक्स, मैक्स और ये करंट वैल्यू, उनका कोई अभी तो कोई टेंशन है नहीं, ये मैक्स का वैल्यू ऑलरेडी मैक्स है, का तो वैल्यू अपडेट होगा नहीं। लेकिन अभी आपको एक और चीज देखना है, क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, सेकेंड मैक्स ऑब्वियसली कौन सा होना चाहिए 101। मैं ऐसे बोलूँ अभी सेकेंड मैक्स इज लेस देन मैक्स एंड सेकेंड मैक्स इज लेस देन एरे ऑफ आई, है क्या, सेकेंड मैक्स कितना है 99, 99 इज लेस देन 105 एंड सेकेंड मैक्स क्या है आपका 99 इज लेस देन 101, वो है, ये पहला वाला ट्रू है, यस ये वाला ट्रू है, 99 इज लेस देन 101, तो आपका सेकेंड मैक्स बनेगा इसलिए आपको ये लिखा है, चल जाएगा। हाँ तो एक ही करेगा ना, सेकेंड मैक्स एक 05 दोनों भी, तो ऐसे हुआ, मैक्स और सेकेंड मैक्स दोनों सेम ही आ रहा है। हम्म?
एल्स में आना चाहिए ना, चल जाएगा। सिर्फ आना चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा। फिर सेकेंड मिनिमम लॉजिक, सेकेंड मिनिमम के लिए भी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन विल टेक। So whenever I ask this question, people simply say, क्या करते हो लोग, वो प्रिंट करते एक एरे, दैट इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम array dot length -1 and index should be greater than or equal to 0 and index -1. This is what they print. The array of index they print. This is not reversing the array, not reversing the array. This is just printing the array content from last to first. ये क्या करना है, कंटेंट चेंज करना है। अभी लेट से आपको क्या करना पड़ेगा, लेट से आप एक लाइन में बैठे हो, जो ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर करना है आपको, क्या करोगे आप। एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं विल अंडरस्टैंड। क्या है दिस पर, ऑर्डर बैठा हो कैसे चाहिए, इस ऑर्डर में आप बैठे हो, ऑर्डर आपका, अभी लोकेशन क्या इंडेक्स है आपका, तो 1 2। तो मैं ऐसे, ये सिचुएशन क्या करना है मुझे, रिवर्स। बहुत सारे लोग मुझे जैसे वी विल क्रिएट अ न्यू एरे, दे विल क्रिएट अ न्यू एरे, और ये वाला यहाँ पर डालेंगे, लास्ट में रीड करेंगे और उसको नए एरे में ऐड। लेकिन दिस इज नॉट, हाँ इसमें रिवर्स क्या कर रहे हो आप, मतलब एक नया एरे बना रहे हो और उसमें कंटेंट कौन सा ऐड कर रहे हो, पुराने वाले एरे का कंटेंट ऐसे कॉपी कर रहे हो। तो मुझे नया एरे नहीं क्रिएट करना, डोंट वांट टू क्रिएट न्यू एरे, एग्जिस्टिंग एरे में क्या करोगे, सिंपल, बहुत सिंपल। क्या करना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट, आप इसको लेफ्ट बोल सकते हो, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट जीरो, और ये आपका लेफ्ट रहेगा। अभी लेफ्ट कहाँ पर है आपका, व्हाट इज योर लेफ्ट, लेफ्ट इज जीरो, राइट इज, लेफ्ट राइट स्वैप कर दो, फिर लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस, तो लेफ्ट आएगा आपका लेफ्ट इक्वल टू 1 और राइट माइनस, लेफ्ट राइट स्वैप कर दो, लेफ्ट आपका आएगा पर इक्वल टू 2, राइट इक्वल टू 3, स्वैप कर दो,
और जैसे ही लेफ्ट राइट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे we will कितने स्वैपिंग्स होंगे, कितने स्वैपिंग्स होंगे, दैट्स इट, दैट्स हाउ यू रिवर्स द कंटेंट। पहली बात ये आपका सोल्यूशन नहीं है, आउट करता हूँ। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर लूप लिखना है। एक्स, एक्स नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, लेफ्ट, लेफ्ट कितना रहेगा 0 और राइट कितना रहेगा, array length yes and left should be less than right, left plus plus right, that's it। ये समझे क्या किया कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट प्लस प्लस होगा, राइट माइनस माइनस, और कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं, दैट्स इट। और मुझे क्या करना है, स्वैप करना है बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा मैं, टेम्प इक्वल टू, स्वैपिंग कैसे करते हैं, स्वैपिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 200 है, आप एक थर्ड कंटेनर ले सकते हो, एम्प्टी खाली वाला टेम्प, तो इसका इसमें डालो या इसका इसमें, यहाँ पे डाल दिया 200 आया, और ये यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर बन गया 200, और फिर ये 200 यहाँ पर ऐड करो, ठीक है। शॉपिंग कैसे होता है, शॉपिंग पता है राइट, बस 2 बोतल है, ए बॉटल बी। अब मुझे बॉटल ए का कंटेंट इसमें ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ क्या मैं, क्या करना पड़ेगा, पहले इसको खाली करना, ऐड करो, ये खाली हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये कंटेंट इसमें डाल दो, अभी ये खाली हो गया। दूसरा स्टेप, ये आपका बन गया टेम्प का ए एंड बी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्प क्रिएट करना, टेम्प में क्या करो आप, बी का कंटेंट ऐड करो या ए का, कोई किसी का भी चल जाए, वही करना है आपको। टेम्प इक्वल टू एरे ऑफ लेफ्ट, एंड एरे ऑफ लेफ्ट इक्वल टू एरे ऑफ राइट, देन एरे ऑफ राइट इक्वल टू, दैट्स इट, हो गया आपका काम। और एरे को प्रिंट कर दो आप, और यू कैन प्रिंट द एरे, x starts from 0 and array length प्रिंट कर दो आप ऑफ, now 89 67 34 45 10। क्या करना है, लेफ्ट राइट स्वैप करना है, लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस, कंटिन्यू टिल द टाइम लेफ्ट एंड राइट क्रॉस, सिंपल।